Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to start English grammar for third class. Let's start chapter 1, the sentence. Now we will learn all about sentence. When we need to express a thought, जब भी हमें अपने thoughts express करने होते हैं, we speak or write certain words in a certain order. तब हम क्या करते हैं, words को certain order में बोलते हैं या फिर एक certain order में लिखते हैं. Such groups of words should make complete sense. अब जो group of words है उनका एक complete sense होना चाहिए या फिर जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप यूज़ करते हैं उनका एक कंप्लीट सेंस होता है. A sentence is a group of words arranged properly which makes complete sense. अब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं. एंड दैट पर्टिकुलर सेंटेंस हैज़ अ कंप्लीट सेंस. The words should be ordered in a certain way to make a complete sense. तो जो आपके words हैं वो एक certain order होना चाहिए एक complete sense बनाने के लिए. A sentence should always begin with a capital letter. अब जो भी आप sentence लिखते हैं उनका जो पहला letter होता है वो capital में लिखते हैं. A sentence usually ends with a full stop. जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तब आप क्या करते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एंड में एक फुल स्टॉप लगाते हैं. नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल. द रोज स्मेल्स स्वीट. रोज़ की स्मेल कैसी होती है, स्वीट होती है. सो नाउ इफ यू विल सी द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड मीन्स टी इज कैपिटल. Now, if you will see in the end of the sentence, there is a full stop. Now, a sentence can be divided into two parts. जो sentence होता है उसे आप two parts में divide कर सकते हैं. First point, the person, place, thing or emotion that is spoken about is naming part or subject. एक पर्सन, प्लेस या थिंग जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट पर्टिकुलर वर्ड इज कॉल्ड द नेमिंग पार्ट और सब्जेक्ट. हम उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज सेड. जो भी सेंटेंस में कहा जाता है या फिर बताया जाता है या किसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है अबाउट द पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन, that is called doing part और predicate. उसे आप क्या बोलते हैं, predicate बोलते हैं. Now we will see the example. The sun shines bright. Now हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, the sun. हम sun के बारे में बात कर रहे हैं. The sun shines bright. सूरज बहुत bright चमक. Talking about the sun, so here the sun will be the subject and the remaining sentence what we are describing about the sun will be the predicate. Now we have now learned that. अब हमने क्या सीखा, I do not will be a incomplete sense, not a sentence. तो I do not will be a incomplete sentence because we are not having the predicate about the sentence. Next, I do not like bananas. So this will be a complete sentence because it has a sense. क्योंकि जब हम सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, as we have learned that a sentence should be a complete sense. सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए. सो हियर आई डू नॉट, इसके पास कोई भी प्रेडिकेट नहीं है. नाउ आई डू नॉट लाइक बनानाज, कि मुझे बनानाज पसंद नहीं है. इट मीन्स इस सेंटेंस के पास एक कंप्लीट सेंस है. नाउ इज ब्रेकफास्ट ईटिंग ही. यहाँ पर आपके जो वर्ड्स हैं वो एक सर्टेन ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं. सो ये भी एक सेंटेंस नहीं होगा बिकॉज अगर आप इस सेंटेंस का सेंस देखेंगे तो इट हैज़ नो सेंस. नाउ ही इज़ ईटिंग ब्रेकफास्ट.
वह ब्रेकफास्ट कर रहा है। इट मीन्स दिस सेंटेंस हैज़ द कंप्लीट सेंस। तो ये एक सेंटेंस होगा। ओके, नाउ वी विल सी, लुक एट द टेबल बिलो एंड रीड केयरफुली। अब हम एक टेबल देखेंगे जिसमें हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है नेमिंग पार्ट के साथ और डूइंग पार्ट के साथ। लेट्स सी। Now the naming part, the dog is barking. So what will be the naming part here? The dog. Dog will be the subject here because we are talking about the dog here. Now doing part will be is barking, right? Next is they are playing cricket. So they will be the naming part here and remaining sentence will be the doing part. That bicycle is yours. Bicycle तुम्हारी है, मीन्स वह bicycle तुम्हारी है। So that bicycle will be the naming part here and is yours will be the doing part. The girl is carrying a bag. So here the girl will be the subject, means naming part, and the doing part will be is carrying a bag. Now the naming part in a sentence is called the subject. जो नेमिंग पार्ट होता है हमने पहले भी देखा है, अभी नेमिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। Now the subject indicates the person or thing that does the action. तो जो सब्जेक्ट क्या इंडिकेट करता है? सब्जेक्ट इंडिकेट करता है जिस पर्सन के बारे में, प्लेस और थिंग के बारे में हम बात करते हैं। That is called the subject. Now the doing part in a sentence is called the predicate. अब जब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, that is called the predicate. The predicate describes the action that is done by the subject. तो प्रेडिकेट क्या डिस्क्राइब करता है? उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। और द प्रेडिकेट रेफर्स टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के अलावा जो रिमेनिंग सेंटेंस होता है, दैट इज प्रेडिकेट। बिगिनिंग विद वर्ब। Thus a sentence is made up of two parts. Sentence दो पार्ट से मिलकर बना होता है, subject and the predicate. I hope you all have understood what is a sentence. Sentence क्या होता है? Group of words होता है जिसका एक complete sense होना चाहिए। एक sentence दो parts से मिलकर बना होता है, एक subject और दूसरा predicate। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, वी विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। पिक आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको क्या करना है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है। राइट them in the correct columns given below. तो आपको क्या करना है? यहाँ पर ये जो टेबल गिवन है, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है और यहाँ पर आप प्रेडिकेट लिखेंगे। सो सी द फर्स्ट सेंटेंस, द हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? द सब्जेक्ट विल बी द हर्ड ऑफ कैटल्स एंड द रिमेनिंग सेंटेंस विल बी द प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज दीज मैंगोज आर सॉर। ये जो आम है वो खट्टे हैं। सो हियर द मैंगोज, दीज मैंगोज विल बी द subject and the remaining sentence will be the predicate. Next is the teacher gave us homework. So the teacher will be the subject in this sentence and the remaining sentence will be the predicate. Fourth is the clock ticks all day along. तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। सो द क्लॉक विल बी द सब्जेक्ट और रिमेनिंग सेंटेंस आपका प्रेडिकेट होगा। नाउ देयर इज अ एलिफेंट इन द पार्क।
सो देयर इज अ एलिफेंट इन द पार्क। सो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो देयर इज अ एलिफेंट इन द पार्क। नाउ द रिमेनिंग sentences you have to do by your own. Now we will see the next question of this chapter. The next question is, look at the following groups of words. Tick correct if it is a sentence and cross out if not. तो यहाँ पर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक सेंटेंस है और कौन सा पर्टिकुलर सेंटेंस नहीं है। सो फर्स्ट वन इज टू द ईस्ट। क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं टू द ईस्ट एक कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं, बिकॉज टू द ईस्ट कोई सेंस नहीं बना रहा है, ना ही इसमें कोई सब्जेक्ट है, ना ही इसमें कोई प्रेडिकेट है। सो दिस विल not be a sentence, so you have to cross out. Now up the hill, क्या up the hill एक complete sentence है? क्या ये कोई एक particular sense बनाता है? नहीं। Next drink cold water, यहाँ पर भी subject आपको नहीं दिया गया है, so this will not be a complete sentence. Next she sang a song, वह गाना गाती है या उसने गाना गाया। डेफिनेटली ये एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, सो दिस विल बी अ सेंटेंस, सो यू हैव टू टेक राइट ऑन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट बैग इज माइन, बैग मेरा है, सो बैग विल बी द सब्जेक्ट एंड इज माइन विल बी द प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज ही वॉज फ्लाइंग अ काइट, वह एक पतंग उड़ा रहा था। सो दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज ये एक सेंस बना रहा है जिसके पास सब्जेक्ट है प्लस इसमें प्रेडिकेट भी है। नेक्स्ट वी ट्रेवल्ड टू, हमने ट्रेवल किया, लेकिन कहाँ पर किया? ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। नाउ द रिमेनिंग सेंटेंसेस यू हैव टू डू बाय योर ओन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, match the correct predicates with the given subjects to frame complete sentences. Now, we have to match these subjects with the predicates. So, my mother is a nurse. So, it will be my mother is a nurse. मेरी मम्मी एक nurse है। The kite flew high in the air. So the sentence will be the kite flew high in the air. Now we will see the third one. Our class went for a picnic. Next one, Rohit. Now we will see fourth one. Rohit and I are men's best friend. Next is she. So she is reading the news. Next, the cobbler. Holi is the festival of colors, right? The next, the horse and the dog are men's best friend. Horse और जो dog है वो men के बहुत अच्छे दोस्त हैं। This book is very interesting, यानी कि complete sentence क्या होगा? यह book बहुत interesting है। The remaining one is the cobbler. The cobbler mends my shoes. So I hope you all have understood very well sentence, subject and predicate. Now we will see the next question. Okay, so next and the last question is, provide suitable subjects to complete the sentences. आपको क्या करना है? इन सेंटेंसेस के लिए आपको एक सुटेबल सब्जेक्ट प्रोवाइड कराना है। लेट्स डू इट। डैश इज कॉन्फिडेंट अबाउट हर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? शी इज कॉन्फिडेंट अबाउट हर परफॉर्मेंस, सो यू हैव टू राइट शी एज सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज डैश इज अ वाइल्ड एनिमल।
वाइल्ड एनिमल कौन सा है? आप सभी बताइए. टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल. सो यू कैन फिल टाइगर हियर. नेक्स्ट इज डैश हैज 11 प्लेयर्स. 11 प्लेयर्स कहाँ पर होते हैं? एक टीम के अंदर होते हैं. सो यू कैन राइट द क्रिकेट टीम हैज 11 प्लेयर्स. The fourth sentence is dash is the national flower of India. इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है? आई होप आप सभी को पता होगा. सो यू हैव टू राइट लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. राइट, बिकॉज जो लोटस है वो इंडिया का एक नेशनल फ्लावर है. नाउ डैश हैज़ अ लॉन्ग नेक. यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके पास होती है एक लॉन्ग नेक? जिराफ की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर व्हाट विल बी द सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट विल बी द जिराफ. सो यू हैव टू राइट जिराफ हियर. I hope you all have understood the chapter and the exercise very well. I hope you all have understood very well. Thank you so much for watching.